السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ صدر پنجاب پردیش کانگریس نوجوت سنگھ سدھو نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہا ہے۔ انہوں نے کرتارپور پروجیکٹ کے CEO سے بات چیت میں عمران خان کو بڑے بھائی کہہ کر مخاطب کیا۔ وہ پنجاب کے کئی کابینی وزراء کے ساتھ کرتارپور گرودوارا گئے ہوئے ہیں۔ 2018 میں سدھو نے پاکستانی فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے گلے لگ کر تنازع پیدا کیا تھا۔ وہ اس وقت عمران خان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے پاکستان گئے ہوئے تھے۔ تینوں متنازع زرعی قوانین واپس لینے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کے بعد BJP اور اس کے حامیوں کو امید تھی کہ اب کسان رام ہو جائیں گے، لیکن کسانوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے دیگر مطالبات منوا کر ہی دہلی کی سرحدوں کو خالی کریں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کسان تنظیموں نے یہ اپیل جاری کر دی ہے کہ 26 نومبر کو کسانوں کے احتجاج کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پورے ملک کے کسان مظاہرہ گاہوں پر پہنچیں اور اتحاد کا ثبوت دیں۔ دوسری طرف اس معاملے میں کسانوں کی تنظیموں کی سنگھو بارڈر پر اہم میٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آنے والے دنوں میں احتجاج کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ کانپور میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا 27واں اجلاس عام منعقد ہوا، جس میں مولانا رابع حسین ندوی ایک اور میعاد کے لیے صدر منتخب کیے گئے ہیں۔ ان کا انتخاب اتفاق رائے سے عمل میں آیا۔ مولانا رابع ندوی 2002 سے اس عہدے پر فائز ہیں۔ انہیں عالم اسلام میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ دارالعلوم ندوہ کے امیر اور اسلامی فقہ اکیڈمی کے سرپرست ہیں۔ وہ نائب صدر، عالمی رابطہ ادب اسلامی ریاض کے نائب صدر اور مسلم ورلڈ لیگ کے بانی رکن بھی ہیں۔ ان کا شمار عالم اسلام کے بااثر مسلم شخصیات میں ہوتا ہے۔ 2002 میں سب سے پہلے مولانا ندوی نے صدر کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ کی حیثیت سے قاضی مجاہد اسلام قاسمی کی جگہ لی تھی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے کانپور اجلاس میں ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل اور انہیں درپیش چیلنجز پر غور کیا گیا۔ کانپور کے جمجاؤ علاقے میں اس اجلاس میں بورڈ کے نئے ارکان کا بھی انتخاب عمل میں آیا ہے۔ اس اجلاس میں مسلم امت میں نکاح کو آسان بنانے اور بیجا اسراف کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات پر غور کیا گیا۔ BJP رکن پارلیمنٹ ورون گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے درخواست کی ہے کہ وہ فصلوں کے لیے اقل ترین امدادی قیمت کی قانونی ضمانت کا کسانوں کا مطالبہ قبول کریں۔ انہوں نے لکھیم پور کھیری میں تشدد کے لیے مرکزی وزیر اجے مشرا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پیلی بھیت کے رکن پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ جب تک کسانوں کا یہ مطالبہ قبول نہیں کیا جاتا، ان کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ ایک دن قبل ہی وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے 3 متنازع زرعی قوانین منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا، جن کے خلاف کسان 1 سال سے احتجاج کر رہے ہیں۔ متنازع قوانین سے دستبرداری کا اعلان کا کسان یونینوں نے خیر مقدم کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک پارلیمنٹ میں منسوخی کے اقدامات نہیں کیے جاتے اور اقل ترین امدادی قیمت کی قانونی ضمانت نہیں دی جاتی، ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ ورون گاندھی نے زرعی قوانین کی منسوخی کے فیصلے کے ذریعے کشادہ دلی کے مظاہرے پر مودی کا شکریہ ادا کیا، لیکن کہا کہ اس تحریک کے دوران 700 سے زائد کسان بھائی اور بہن شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ پہلے لیا جاتا تو بے قصور جانیں نہیں جاتی۔ مرکزی حکومت کے ذریعے متنازع زرعی قوانین واپس لینے کے اعلان کے بعد اب CAA کی واپسی کا مطالبے میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ شہریت ترمیمی قانون CAA اور NRC کی مخالفت میں مہینوں تک تحریک چلانے والوں کے لیے امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس تعلق سے بھی مودی حکومت پر دباؤ بنایا جا سکتا ہے، لیکن مرکزی وزیر کوشل کشور کے بیان سے یہ اتنا آسان نہیں لگ رہا ہے۔ مرکزی وزیر کوشل کشور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کی بات سنتے ہوئے زرعی قوانین کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ CAA اور NRC پر بھی حکومت اپنا قدم پیچھے کھینچ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی قوانین واپس لینے کے بعد اپوزیشن کے پاس اب کوئی مسئلہ نہیں بچا ہے، اس لیے اپوزیشن قائدین نے CAA NRC کی واپسی کے لیے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے۔ جو لوگ CAA NRC واپس کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ مرکزی کابینہ میں رہائش اور شہری امور کے وزیر مملکت کوشل کشور اتر پردیش کے موہن لال گنج سیٹ سے BJP رکن پارلیمنٹ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ CAA اور NRC کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عوام کا مطالبہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس کی واپسی کی آواز اٹھا رہے ہیں وہ اپوزیشن پارٹی کے لوگ ہیں۔ زرعی قوانین واپس لینے کے اعلان کے بعد CAA کی تنسیخ اور جموں کشمیر میں دفعہ 370 کی بحالی کے مطالبات زور پکڑنے لگے ہیں۔ مسلم رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے UAPA اور CAA واپس لینے کی گزارش کی ہے، جبکہ جموں کشمیر کے قائدین نے دفعہ 370 کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں یہ مطالبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اپوزیشن حکومت کو گھیرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ زرعی قوانین رد کر دینے کے اعلان کو حکومت کے خلاف جیت قرار دیتی ہے۔ اپوزیشن متحدہ ہو کر اپنے مطالبات کر سکتی ہے۔ دفعہ 370 اور CAA پر اپوزیشن میں اختلافات رائے ہو سکتا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ CAA اور 370 کا مسئلہ اٹھایا گیا
तो बीजेपी के लिए चारे के तौर पर काम कर सकता है, तहम मुस्लिम रहनुमा ऐसा नहीं सोचते। इनका कहना है कि सीए एहतजाज कोविड की वजह से वापस लिया गया और अब हुकूमत को इस मामले में भी पीछे हटना चाहिए। महाराष्ट्र मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहां पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को काबिल सज़ा जुर्म करार देने का बिल रियासती कानून साज कौंसिल में पेश कर दिया गया है। वहां से मंजूरी के बाद यह बिल असेंबली में मंजूर होगा और तमाम मराहिल से गुजरकर कानून बन जाएगा। इस कानून के मसूदे की तैयारी और इसके लिए जद्दोजहद के पस पर्दा बहुजन वंचित अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर की हिकमत अमली और मनसूबाबंदी कार फरमा है। इस बिल के ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में 22 नवंबर यानी पीर को मुंबई समेत तमाम अजला में बेदारी मुहिम चलाई जाएगी और जिला हेडक्वार्टर्स पर धरने दिए जाएंगे। बिल का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के कन्वेनर अब्दुल बारी खान और वंचित बहुजन अघाड़ी के खाजिन अबू हसन खान ने एक बयान में बताया कि मुंबई शहर और मज़ाफ़ात में 3 मुकामात पर मुजाहरे होंगे। पहला सबसे बड़ा मुजाहरा बांद्रा के कलेक्टर ऑफिस में, दूसरा बोरोवली में तहसील के दफ्तर में और तीसरा मुजाहरा ओल्ड कस्टम हाउस में होगा। ये मुजाहरे वंचित बहुजन अघाड़ी की महाराष्ट्र यूनिट की सदर रेखाताई ठाकुर की क़यादत में होंगे। इस बिल के मोहरिक और बहुजन वंचित अघाड़ी के लीडर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने इस नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि हमने दानिस्ता तौर पर बिल का मसूदा कानून साज कौंसिल में पेश किया है। अगर असेंबली में पेश करते तो असेंबली के तहलील होने की सूरत में यह बिल भी ख़त्म हो जाता, लेकिन चूँकि कानून साज कौंसिल तहलील नहीं होती इसलिए बिल का मसूदा कौंसिल में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में यह कानून बन जाता है तो मुल्क की दीगर रियासतों को भी इस तरह का कानून बनाने की तहरीक मिलेगी और रियासत महाराष्ट्र के लिए ये एजाज़ की बात होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात की शहजादी हिंद फैसल अल कासिम ने अपने टीवी चैनल के तौसीर से इस्लाम दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी को अपने मुल्क में बुलाने के लिए सख्त तनकीद की है। चौधरी को एक दहशतगर्द करार देते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात की शहजादी ने मुंतज़मीन को याद दिलाया कि कैसे मुतनाज़ा टीवी एंकर आमतौर पर इस्लाम और इसके मानने वालों को बदनाम करते रहे हैं। उन्होंने मुंतज़मीन पर तनकीद करते हुए कहा, आप लोगों ने मेरे पुरअमन मुल्क में एक इस्लाम दुश्मन शख्स को बुलाने की जुर्रत कैसे की। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, 2019 और 2020 में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ पर शो चलाया जहां इसने सीए की मुखालिफत के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था। उन्होंने शाहीन बाग, नई दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों में सीए के खिलाफ एहतजाज की क़यादत करने के लिए मुस्लिम तलबा और ख़वातीन को निशाना बनाते हुए फर्जी खबरें चलाई। उन्होंने मुंतज़मीन और इंडियन चार्टर अकाउंटेंट्स एसोसिएशन से पूछा, वो मेरे पुरअमन मुल्क में इस्लाम दुश्मनी और नफरत क्यों ला रहे हैं। उन्होंने एक दीगर ट्वीट में लिखा, सुधीर चौधरी एक हिंदू कट्टरपंथी एंकर है जो अपने इस्लाम दुश्मनी पर मबनी शो के लिए मशहूर है, जो भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की मुखालिफत करता है। इनके कई प्राइम टाइम शो ने मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद भड़काने में मुआविनत की है। दुनिया भर की आबादी 7 अरब 90 करोड़ हो गई है। चीन आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 31 अक्टूबर 2011 को आबादी 7 अरब थी। 10 साल में 90 करोड़ का इजाफा हुआ है। साल 2023 तक आबादी 8 अरब, 2037 में 9 अरब और 2055 तक दुनिया की आबादी 10 अरब तक पहुंचने का इम्कान है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 1 अरब 44 करोड़ से ज़्यादा आबादी चीन की है। दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है जहां आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। अमेरिका की आबादी 33 करोड़, इंडोनेशिया 27 करोड़ और पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। इस साल अब तक दुनिया भर में 12 करोड़ से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश हुई। इस साल अब तक दुनिया भर में 5 करोड़ से ज़्यादा अमवात हुई। आज से 12 साल पहले 2009 में आबादी ने 6 अरब का हिंसा उबूर किया था। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को वापस लेने के ऐलान पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि मरकज़ी हुकूमत को ज़रई क़वानीन के खिलाफ जद्दोजहद और आवाज़ उठाने वालों पर आयद तमाम मुकदमात से भी दस्तबरदार होना चाहिए। प्रगति भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़रई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान करते हुए किसानों से माजरत ख्वाही की। सिर्फ माजरत ख्वाही से कुछ होने वाला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म से वो मुतालबा करते हैं कि गुज़िश्ता 13 माह से ज़रई क़वानीन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले किसानों और जहदकारों पर आयद गद्दारी जैसे संगीन मुकदमात को भी वापस लिया जाए। इसी तरह किसानों के एहतजाज के दौरान मरने वाले हर एक किसान के अफराद ख़ानदान को 25 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया का ऐलान करें। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 13 माह के दौरान किसान सड़कों पर मरकज़ के ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान मुल्क भर में 750 किसान दौरान एहतजाज फौत हो गए। इन तमाम किसानों को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ़ीकस 3 लाख रुपए की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत 750 किसानों की मदद के लिए 22 करोड़ रुपए की रकम खर्च करेगी। रियासती वज़रा मुतालिका रियासत के मुतवफ़ी किसानों के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इनकी माली मदद करेंगे।
आंध्र प्रदेश के अजला कड़पा और अनंतपुर में बारिश से मुतालिक वाक़यात में मजीद 4 अमवात के बाद रियासत में मौसलाधार बारिश की वजह से अमवात की तादाद बढ़कर 23 हो गई। अनंतपुर के कड़री टाउन में 2 इमारतें मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 3 हलाकतें हुई हैं। एक और शख्स की नाश जिला कड़पा के राजमपेट मंडल में अन्नमया प्रोजेक्ट में दस्तयाब हुई, जो सैलाब के पानी में बह गई थी। शहर हैदराबाद ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में मुल्क का सबसे महफूज मुकाम है। इन ख़यालात का इजहार कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने किया, जो साउथ जोन में मुनक़िदा जॉब मेला प्रोग्राम को मुखातिब थे। साउथ जोन में खुसूसी तौर पर ख्वातीन के लिए मुलाज़मतें फ़राहम करने जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया था। सिटी पुलिस की जानिब से इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने जॉब मेले को मुखातिब करते हुए कहा कि ख्वातीन की शराकत दारी के बगैर मुल्क और रियासतों की तरक्की गैर यकीनी है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना पुलिस की जानिब से ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी तरक्की के लिए अंजाम दिए जा रहे इक़दाम व दीगर रियासतों के लिए मशाल राह हैं। क़यामत तेलंगाना 2014 के बाद चीफ मिनिस्टर ने पहले ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर इक़दाम किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इंडिया पुलिस फाउंडेशन और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जानिब से हैदराबाद को ख्वातीन की हिफाजत के मामले में सरफ़हरिस्त और महफूज शहर करार दिया गया। उन्होंने बताया कि जॉब मेले में 1000 से ज़ायद लड़कियों ने शिरकत की है। तेलंगाना हुकूमत ने थिएटर्स यानी सिनेमा घरों के हुदूद में पार्किंग फ़ीस वसूल करने की इजाज़त दे दी है। हुकूमत ने एक GOMS जारी करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से तिजारती इदारों, मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में पार्किंग फ़ीस वसूल ना करने की हिदायत दी गई थी। ताहम हुकूमत के इल्म में यह बात लाई गई कि जहां सिनेमा घर, थिएटर्स मौजूद हैं, वहां ऐसे लोग भी अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे हैं जो फिल्म बेनी के लिए नहीं आ रहे हैं। ऐसे में गाड़ियों की देखभाल और इनकी हिफाजत एक मसला बन रहा है। इसीलिए हुकूमत ने इस मसले का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद सिर्फ सिनेमा घरों यानी थिएटर्स में पार्किंग फ़ीस वसूल करने की इजाज़त दे दी है। ताहम वाज़े किया है कि मल्टीप्लेक्स में और तिजारती कॉम्प्लेक्स में वाक़ थिएटर्स में पार्किंग फ़ीस वसूल ना करने के अहकाम बरकरार रहेंगे। इस सिलसिले में हुकूमत ने साबिक़ा अहकाम में तरमीम करते हुए नए अहकाम जारी किए हैं, जिन पर फौरी असर के साथ अमलावरी होगी। TRS रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मुकाबला कर सकते हैं और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ही मोदी के मुतबादिल साबित होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने दावा किया कि हैदराबाद में चंद्रशेखर राव की जानिब से किसानों के मसले पर धरना किए जाने के बाद दिल्ली में हलचल मच गई और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी। इसकी वजह सिर्फ चंद्रशेखर राव हुकूमत है। हैदराबाद में तारीखी चारमीनार और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू का बाबुद्दाखिला मुल्क और दुनिया भर के 250 तारीखी यादगार ढांचे और इदारे आलमी यौम अतफ़ाल WCD 2021 आगाज़ की मुनासिबत से गुज़िश्ता शाम नीले रंग की रोशनी से सजा दिया गया था। ये दिन बच्चों के लिए एक्शन डे के तौर पर दुनिया भर में मनाया जाता है। हफ्ता 20 नवंबर को CRC कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन के तौर पर इख्तियार करने के तौर पर मनाया गया। दुनिया भर में हिंदुस्तान और तमाम ममालिक में 20 नवंबर से हफ्ता तवील आलमी यौम अतफ़ाल तक़ारीब का अहतमाम किया जा रहा है। मुल्क भर के यादगार दिल्ली से राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस और कुतुब मीनार के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ गोशों के तारीखी यादगार सरकारी दफातर लैंडमार्क्स को 19 और 20 नवंबर को नीले रंगों में रंगा गया है, जिसका मकसद कौमी सतह पर बच्चों के हुकूक़ की तक़ारीब और तालीम में बच्चों की पेशरफ्त को उजागर करना है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।